मैं कलीम शेख एमएच के क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ज्योमेट्री 10th स्टैंडर्ड का 3.2 का प्रैक्टिस सेट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल। आप जो व्यूवर्स है हमारे लिए बहुत, आप लोग इम्पोर्टेंट है, अहम है। आप ही लोगों के लिए हम वीडियोस बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि टू सर्कल्स हैविंग रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and 4.8 centimeter touch each other internally. Find the distance between their center. Now, a circle with radius AP, A is the center, is drawn, and the smaller circle with center B and radius BP is drawn. You can observe that point P is the common point between these two circles, that is circle with center A and circle with center B. So I can say that these two circles touch internally. ये इंटरनली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। व्हेन आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो आपका पेज नंबर टेक्स्ट बुक का 57 पेज, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 7 पर दो थ्योरम दिए हुए हैं। इफ टू सर्कल टच ईच अदर, their point of contact lies on the line joining the center. And so I can say that A dash, B dash, P dash, the distance between their center, that is A and B, will be R2 minus R1. R2 minus R1. That is R2 is bigger than R1. Here R2 is equal to AP and R1 is equal to BP. Therefore, if two circles touch each other, their point of contact lies on the line joining their center. That is A dash, B dash, P dash. Therefore, AP is equal to AB plus BP, and AP is equal to 4.8 and AB plus BP, that is 3.5. यहाँ माइनस कर लूंगा मैं। AB is equal to 4.8 minus 3.5. Therefore, AB is equal to 1.3 सेंटीमीटर। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट AP is equal to R2 is equal to 4.8 and BP is equal to R1 is equal to 3.5. Therefore, AB is equal to R2 minus R1 is equal to 4.8 minus 3.5 is equal to 1.3 centimeter. In any way, but you have to write that these two circles touch internally or externally. Two circles of radius 5.5 centimeter and 4.2 centimeter touch each other externally. Find the distance between their center. Again आप पेज नंबर 57 पर जाएंगे, आपको फिगर रहेगा। तो इनका डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स विल बी R1 प्लस R2. They are collinear.
two circles with center P and Q touch each other externally at point R. Therefore, PR is equal to 5.5 centimeter, QR is equal to 4.2 centimeter, P dash, R dash, Q dash. If two circles touch each other, their point of contact lies on their joining their centers. Therefore, PQ is equal to PR plus QR. ऐसा भी लिख सकते हैं आप, R1 प्लस R2. ये स्क्रीन क्यों ब्लैक हो गया? एंड PQ is equal to 9.7. The distance between their center is 9.7. आप ले सकते हैं कि ये पेन क्यों नहीं चल रहा है? जब दो सर्कल टच करे तो इनका सेंटर होगा R1 प्लस R2. और ये एक्सटर्नली और इंटरनली टच करेंगे तो R2 माइनस R1 वेन R2 इज बिगर देन R1. ये फार्मूला याद रखो आप, या इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट लिखना पड़ेगा कि when two circles touch internally or externally, their point of contact and their centers are collinear. इस तरह से भी लिख सकते हैं आप. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. The radii of two circles are 4 centimeter and 2.8 centimeter. Draw the figure of these circles touching each other externally and internally. यहाँ ये फिगर हो गई आपकी. इसका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 2.8 के सेकंड. इंटरनली इस तरह से होगी. इफ रेडिया, ड्रॉ द फिगर, सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है. आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है. बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ. ये फिगर बहुत अच्छी है और मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये पहले दो क्वेश्चन मैंने जो समझाया हूं और इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, ये हर साल इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है. देखिए यहां पर पॉइंट आर जो है, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं. हमने अभी पढ़ा कि व्हेन टू सर्कल टच इंटरनली और एक्सटर्नली, their point of contact and their centers are on the same line. Yeah, they are collinear. That is P dash, R dash, Q dash. Now you can observe the figure. We have to prove that segment AP is parallel to BQ. Now boys, look at triangle APR. In triangle APR, AP is equal to PR, radii of the same circle. Therefore, I can say that this is an isosceles triangle. Therefore, this angle is equal to this angle. Point number 1. Point number 2, angle ARP is equal to angle QRB, vertically opposite angle. These two angles are equal. These and these equal. Equation number 2. Equation number 3. In triangle RQB, RQ is equal to QB. This is also isosceles. Then these two angles are equal. Therefore, I can say that angle A is equal to angle B from 1, 2 and 3. And you can observe that ये Z बन रहा है. So these two lines are parallel by कौन सा टेस्ट रहेगा वो? corresponding angle test. अब एंगल PAR,
मैं इसको मिटा देता हूं। पी ए आर इज इक्वल टू 35। तो ये भी 35 का होगा, ये भी 35 का होगा, ये भी 35 का होगा, जैसा मैंने पहले बताया। आपको बोल रहा है वो कि फाइंड आर बी क्यू, आर बी क्यू, आर बी क्यू। ये तो 35 निकाल लिया ना मैंने। आर क्यू बी ये मालूम करना। तो आपको बॉयज मालूम है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180। तो ये 35 है, वो 35 है। तो टोटल हो गया मेरा 70। 180 में से मैं 70 माइनस कर दूंगा, तो मेरा हो जाएगा ये 110 का ओरली हो जाएगा। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं इसकी मोटी मोटी बातें। अब सिस्टमेटिक आपको, यहां पर आप आइए मेरे साथ जुड़िए, सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि पी डैश आर डैश क्यू डैश when two circles touch internally or externally, their point of contact and their centers are collinear. In triangle APR, I have already explained that AP is equal to PR, radii of the same circle. Okay. Therefore, this is an isosceles triangle. Therefore, their base angles are congruent. That is, angle A is equal to, that is PAR is equal to PRA. ये इक्वेशन नंबर 1, isosceles triangle theorem. Similarly, in green shaded triangle RQB, RQ is equal to QB. This is an isosceles triangle, radii of the same circle. Therefore, QBR, ये वाले एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हुए, आइसोसेलेस। अब पॉइंट नंबर 3, पहले मैंने ये दोनों एंगल को प्रूफ कर दिया, फिर सेकंड मेरा ये आया पॉइंट नंबर 3। अब ये एंगल बराबर ये एंगल प्रूफ करूंगा मैं। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, ये पॉइंट नंबर 3 आएगा मेरा। बट एंगल पी आर ए, पी आर ए यानी ये वाला एंगल, ये वाला इजिकल टू क्यू आर बी, क्यू आर बी ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों भी है। ये पॉइंट नंबर 3। दोबारा ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ये बराबर है दोनों, और ये वो दोनों बराबर है आपस में, और ये आपस में बराबर है, इसलिए ए बराबर बी हुआ। फ्रॉम 1 2 and 3 पी आर इज इक्वल टू क्यू बी आर फ्रॉम 1 2 and 3, but these are the therefore AP is parallel to BQ. अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट जहां पर Z बनता है, ये अल्टरनेट। यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ P है, यहाँ A है, यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर R है, किधर ये Q है। ये एंगल बराबर ये एंगल हुआ ना, और ये ट्रांसवर्सल हुआ है। तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट, दिस लाइंस आर पैरेलल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एंगल 35 का है, तो ये एंगल भी 35 का होगा, जो मैंने अर्लियर एक्सप्लेन किया। ये भी 35 का होगा, ये भी 35 का होगा। अब ट्रायंगल एपीआर, और इसमें ये एंगल तो हमने प्रूफ कर दिए, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। देयरफॉर एंगल पी आर इज इक्वल टू एंगल, ये गिवन था मेरा, एंड
ये भी 35 का होगा, तब 35 के हो गए। इन ट्रायंगल क्यू आर बी ये तीनों का सम 180 होगा। ये दोनों 35 के है, वैल्यू रख देंगे हम लोग 180। आर क्यू बी हो जाएगा 180 माइनस 70, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ऐड होके इधर माइनस हो जाएंगे। अब फाइनल रिजल्ट आया मेरा 110। उम्मीद कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो सर्कल है विथ सेंटर ए एंड बी, दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच ईच अदर एट पॉइंट ई। CD, that is line L, is the common tangent of both the circle. Point C and D are point of contact, and some information is given, that is radius of the AC is equal to 6 centimeter, 4 centimeter, and BD is equal to 6 centimeter. And we know that when two circles touch internally or externally, there are point of contact and their centers are collinear, that is A dash, E dash, B dash. ये 4 है, ये 6 है, AB will be equal to 10 centimeter. ये 6 है, ये 4 है. We have to find the distance CD. Now we have to construct a, अब यहां से क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, बराबर है। ये 90 है, ये एंगल, ये 90 है, ये 90 है, ये तीनों का सम 360 होगा। 90 90 90, ये 270 हो गया। 360 माइनस करेंगे तो ये 90 का होगा। यानी दिस मीन दैट ए सी, इसका नाम मैं कुछ भी दे देता हूं, ई दे देता हूं। ये एक रेक्टेंगल हुआ, जब रेक्टेंगल हुआ तो अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट हो गए, तो सी डी इज इक्वल टू होगा उस हमारा ए ई के। अब ए सी इज इक्वल टू डी, तो ये 4 होगा, और डी बी जो क्या है हमारा 6 है, 6 है, तो ये मेरा होगा 2, और ये मेरा हुआ 6। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर, I can easily find out the length of AE, and length of AE will be equal to length of CD. देखिए आइए इसको दोबारा इधर ले लेते हैं हम स्क्रीन पर कि हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है आपको। टेंजेंट का एक फार्मूला लेने का है, पाइथागोरस आपने पढ़ा है ऑलरेडी। इफ टू सर्कल टच ईच अदर इंटरनली और एक्सटर्नली एक्सप्लेन किया मैं, तो ए डैश ई डैश बी डैश हो जाएगा, ये कोलिनियर हो गया। अभी मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा इधर, यहाँ पर मेरा लेंथ ए बी जो है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया होगा। अब मैं कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर रहा हूं कि परपेंडिकुलर डी बी एफ। अब आपको मैंने पहले बताया था कि ये रेक्टेंगल रहेगा, ए सी डी इज इक्वल टू 90, एफ डी सी इज इक्वल टू 90। ये दोनों 90 90 की क्यों हो गए, क्योंकि ये टेंजेंट थ्योरम हो गए ना। और एंगल एफ दैट इज एफ डी, ये भी 90 का होगा क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल एफ ए सी, एफ ए, ये भी 90 डिग्री का होगा, बराबर है, क्योंकि सबका सम 360 होता है, तो ये रिमेनिंग एंगल जो है ये भी 90 का होगा। तो इससे ये वी कैन कंक्लूड दैट
ACDF is a rectangle. If it is a rectangle, then its opposite side AC is equal to DF and AF is equal to CD. Therefore, FD is equal to AC, that is equal to 4, and FD is equal to 4 centimeter, and BD is equal to BF plus FD, and BD is given by 6 centimeter, and BF प्लस एफ डी इज इक्वल टू, ये एफ डी जो है आपका 4 है, तो ये दो साइड 2 हो जाएगी मेरी। देयरफॉर यहाँ सिंपल कैलकुलेशन करने के बाद 2 सेंटीमीटर मेरा ये आंसर आ गया। समझे आप? मैंने एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मेरे पास तो इंफॉर्मेशन थी कि AC जो है 4 है, BD 6 था ऑलरेडी, सिर्फ यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करने से ये रेक्टेंगल बन गया। जब ये रेक्टेंगल बन गया तो अपोजिट साइड इक्वल हो गई, ये 4 का हो गया तो ये साइड 4 की हो गई, ये पूरी साइड 6 की है तो उसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये साइड 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर। मेरे पास ये साइड है और ये साइड ऑलरेडी मेरे पास 10 है, ये 90 का है, तो मैं पाइथागोरस मालूम करके इसको मालूम कर लूंगा, है ना। जब ये मालूम पड़ जाएगा तो मेरा ये आ जाएगा। Now applying Pythagorean theorem in triangle FB at it is 90 degree by construction. Therefore, AB square plus is equal to AF square plus BF square. Pythagoras theorem वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ 10 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी 100 में से 4 माइनस हो जाएगा, ये बचेगा मेरा 96। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, ये 96 16 के टेबल में आएगा, 16 4 6 द, तो 16 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 4 को आप बाहर निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा मेरा ए फिजिकल टू 4√2 6 सेंटीमीटर। Now CD is equal to F, therefore F is equal to 4√6 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसकी जरूर प्रैक्टिस करिए आप लोग, ये एग्जाम में आने जैसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं। वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, आपसे जल्दी मुलाकात करते हैं।